Hello students, I am your tutor Ritika and today we will discuss about the ninth chapter of your science book, that is force and laws of motion. Okay, this is the first part of your ninth chapter, and under this chapter we will discuss about force and laws of motion, like types of force. And in this part I will be covering only one type of laws of motion, that is first law of motion. Okay, rest laws of motion will be covered in the next part. Okay, so first we will discuss about force. What is force? We are very familiar with this term in everyday life. Everything we do, we need some force to complete our activity. So force is an effort that changes the state of an object at rest or at motion. It changes an object's direction, velocity. Force can also change the shape of an object. See, we here are given some examples. And for example, if we take a spring and we want to increase the length of this spring, or we want to stress that string, what we will do, we will apply some force in two different direction and pull it like this, so that the shape or the length of the spring will be increased. Similarly, if we want to we want to squeeze this ball, rubber ball, we will apply a force in this manner and this rubber ball will be squeezed. So this manner we are applying some force. Okay, similarly, if we we want to displace a object, what we will do, we can displace that object in two ways. Either we can pull that object or we can push that subject. Okay, in both the manners, what we do, we apply some force. So force is two types, balanced force or unbalanced force. So see, if we take a book and we place this book on a table, so and we apply some force. If we apply force in two direction, like for example, in this direction we have applied y amount of force, and in this direction we have applied x amount of force. Both y and x amount of force, if both the forces acting upon this book is equal, then what happens, book will not move. दोनों ही अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बुक मूव नहीं हो रही है. दैट मीन्स y अमाउंट ऑफ फोर्स इज जस्ट इक्वल टू x अमाउंट ऑफ फोर्स, एंड ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है. और जब भी कोई चीज़ अपने आप को बैलेंस आउट करती है, मतलब कैंसिल आउट करती है, जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन होता है वो जीरो होता है. दैट मीन्स ऑन दिस book placed on the table, the resultant force is zero. That's why it's not moving, it's still in the rest state. That means when balanced forces are applied to an object, there will be no net effective force acting on the object, and balanced forces do not cause any change in motion. That means balanced force अगर कहीं apply हो रही है तो वो उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगी इन फॉर्म ऑफ मोशन. ठीक है, अब देखो, अब अगर हमने y डायरेक्शन, मतलब y फोर्स जो है, y अमाउंट ऑफ फोर्स हमने x अमाउंट ऑफ फोर्स से ज्यादा रखा, तब क्या होगा. अब जैसे क्योंकि y जो है x से ज्यादा है, ठीक है, तो अब जो बुक जो है ये y के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, एंड क्योंकि x तो y से कम है तो ये इससे अपोज नहीं कर पाएगी. दैट मीन्स अब ये देखो, अब जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस आउट नहीं हुए, ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि अनइक्वल है मैग्नीट्यूड में. तो अब क्या होगा, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड एंड और डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखो, क्योंकि ये डायरेक्शन भी तो डिफरेंट है, ये डायरेक्शन इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, और एक्स डायरेक्शन, एक्स का जो फोर्स है वो राइट साइड पे है. तो एक जब अनबैलेंस फोर्स
एक ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट मूव करना या मोशन में आना स्टार्ट हो जाती है. दैट मीन्स जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं दैट आर द रीजन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. फॉर अदर एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, एक बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स है. इनिशियली एक एक बच्चे ने उसको मूव करना ट्राई किया, बट क्योंकि उस पर्सन के वेट से वो बॉक्स काफी ज्यादा है तो इनिशियली वो उसको पुश नहीं कर पाया. आफ्टर अप्लाइंग सो मच फोर्स द बॉक्स इज स्टिल इन द रेस्ट स्टेट. दैट मीन्स ये जो बॉक्स का जो फोर्स है वो बच्चे के फोर्स को ओवरकम कर रहा है. ठीक है. तो बॉक्स अभी भी रेस्ट स्टेट में है, बट देन इस बच्चे ने ज्यादा जो है फोर्स अप्लाई किया. अब ये बॉक्स थोड़ा मूव करना स्टार्ट किया. अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, इसने यहां इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया. अब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट होता है. वो जो फोर्स होता है वो जो सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सरफेस पे एक स्लाइड करती जाएगी तो सरफेस का जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, वो भी उस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा. तो वो जो फ्रिक्शन है, वो जो हम जो फोर्स अप्लाई करें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो फ्रिक्शन चाहेगा कि हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल रेस्ट स्टेट में आ जाए ताकि फ्रिक्शन को हम कैंसिल आउट कर सकें. बट व्हेन दो पर्सन मिलके वो जो बॉक्स है उसको मूव करने के लिए पुश करते हैं तो अब जो है फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम कर लेते हैं. वो वेट ऑफ द जो बॉक्स था वो तो एक फोर्स अप्लाई कर ही रहा था, साथ में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी उस जो पुश को अपोज कर रहा था. अब जो है मास ऑफ द बॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स को, ये जो पुश से जो फोर्स जो फॉर्म हो रहा है उसने ओवरकम कर लिया, इसलिए अब जो बॉक्स है वो इजीली मूव कर रहा है. दैट मीन्स इस जो पुश से जो फोर्स जनरेट हुआ ये इस वाले फोर्स से ओवरकम कर रहा है. दैट मीन्स ये भी एक तरह का अनबैलेंस फोर्स है क्योंकि अब तो फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लॉज ऑफ मोशन. ओके. देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड गैलीलियो. उनने एक ऑब्जर्वेशन की. उनने क्या किया, दो इंक्लाइंड surface ली. Okay, the first inclined surface was inclined with less angle than the second inclined surface. So first case उनने क्या करा, ये जो first inclined surface लिया उसके टॉप पे एक बॉल प्लेस की. ठीक है. सेकेंड inclined surface जो लिया वो उस जो फर्स्ट inclined surface था उससे ज्यादा एंगल पे था. ठीक है. मतलब वो कम inclined है, ज्यादा एंगल पे है. उनने जब एक हाइट पे उनने बॉल को रिलीज किया एंड बॉल जो है मूव करना स्टार्ट किया. जैसे ही बॉल नीचे तक आई उसकी स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज हो गई थी. ठीक है. अब उस बॉल ने इतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी थी कि वो अब सेकेंड इंक्लाइन सरफेस के टॉप तक चली गई. एंड फिर वो क्योंकि उसको वो जो फोर्स है, वो जो स्पीड है, उसको बैलेंस आउट करनी है तो उसने टू एंड फ्रो ऐसे मूव करना स्टार्ट किया जब तक वो रेस्ट तक नहीं आया. सेकेंड उनने क्या किया, फिर से जो इंक्लाइन सरफेस है वो दोनों के एंगल को बिल्कुल इक्वल रख दिया. अब क्या हुआ कि वो जो बॉल थी वो अगेन फिर वापस आई और अब जो है वो जो बॉल वो रेस्ट स्टेट में आने के लिए उस जो फर्स्ट केस था उससे ज्यादा टाइम लिया. थर्ड केस में उन्हें ये जो एंगल है ये फर्स्ट इंक्लाइन सरफेस से कम रखा. दैट मीन्स बॉल को अब हिंड्रेंस कम हुई. ठीक है. अब यहाँ पे रेस्ट स्टेट में आने के लिए वो काफी इन सब से ये दोनों केसेस से भी ज्यादा टाइम लगा. फोर्थ केस में उन्होंने क्या किया, वो सेकेंड इंक्लाइंड सरफेस से बिल्कुल रिमूव कर दिया. अब ये जो बॉल है अब ये रुकी ही नहीं. अब तो कोई ऑब्स्टैकल भी नहीं है, कोई हिंड्रेंस भी नहीं है इंक्लाइन सरफेस की. अब इसने क्या किया, ऐसे सीधे मूव करना स्टार्ट किया सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे मूव करना स्टार्ट किया. एंड इन सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम लिया
एक इंक्लाइन मतलब प्लेन सरफेस पे रेस्ट पे आने के लिए, क्योंकि प्लेन सरफेस पे आप कोई ऑब्स्टैकल है नहीं, ठीक है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो अब जो बॉल की स्पीड को रोकने के लिए कोई सरफेस तो है ही नहीं, क्योंकि सरफेस तो प्लेन है। दैट मीन्स अब उसको ग्राउंड स्टेट में या फिर रेस्ट स्टेट में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। दैट मीन्स what he concluded we need an unbalanced force to change the motion of marble, but no force is required when the marble is moving uniformly. Okay, in other words, object moves at an constant speed if no force acts upon it. देखो फोर्थ केस में कोई भी फोर्स मतलब कोई इंक्लाइन सरफेस नहीं है, सेकेंड इंक्लाइन सरफेस नहीं है, तो अब इसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। अब ये इजीली मूव कर रहा है एंड ये रेस्ट स्टेट में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस केसेस। इससे न्यूटन ने using the idea of Galileo's experiment, Newton have presented 3 laws of motion. First laws of motion, that is law of inertia, then second law of motion and third law of motion. In this part, we will discuss only the first law of motion. Okay. What is first law of motion? A body continues to be in rest state or uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. The first law is also called law of inertia. See, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा चाहेगी वो रेस्ट स्टेट पे ही रहे, एंड कोई अगर बॉडी मोशन पे है या मूव कर रही है वो हमेशा उस मोशन पे ही रहना चाहेगी या मूवमेंट ही करना चाहेगी, ठीक है। एंड अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बॉक्स को मूव किया या फिर एक बॉल को, देखो इस एक्सपेरिमेंट में देखो एक बॉल को हमने रिलीज किया और ये कुछ आफ्टर सो मच टाइम काफी लंबे टाइम के बाद ये रेस्ट पे आई, लेकिन ये रेस्ट पे क्यों आई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स है। दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अब भी काम कर रही है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स देखो यहाँ पे जब ये रेस्ट पे आई दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स से रोक रही है, बट यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख ही नहीं रहा क्योंकि हमने तो वो जो इंक्लाइन सरफेस था वो तो निकाल दिया। दैट मीन्स जब एक बॉडी मूव करती है तो उसका जो सरफेस होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड हमेशा मोशन को एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। वो जो फोर्स है जो सरफेस प्रोवाइड करता है दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट अराइजेस बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट से वो एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। एंड जो बॉडी है, बॉडी भी तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब बॉडी भी एक फोर्स अप्लाई कर रही होगी ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस आउट कर सके, क्योंकि जब तक बॉडी मूव कर रही है मतलब जो फोर्स है वो तो अनबैलेंस है। दैट मीन्स कोई एक फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की बॉडी से भी सरफेस पे अप्लाई हो रही है। वो जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अगर कोई चीज रेस्ट में है दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो एक इनर्शिया प्रोवाइड कर रही है ताकि वो रेस्ट में ही रहे, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो एक इनर्शिया ऑफ मोशन प्रोवाइड करिए ताकि वो मूवमेंट करती रहे। सो इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है? इनर्शिया जो होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया को हम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के टर्म में उसको मेजर करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। दैट मीन्स इनर्शिया का जो एसआई यूनिट होता है वो भी केजी होता है। The body with greater mass has greater inertia. For example, let's discuss this example. Okay, there is a ball is in rest state. When a footballer applies some force by kicking this ball, what happens? The ball start moving. And कब तक मूव करेगा? जब तक ये मूव करते करते जो फ्रिक्शनल फोर्स है
जो सरफेस का वो उसके जो बॉल के जो मोशन है उनके इनर्शिया को, मोशन ऑफ इनर्शिया को वो ओवरकम ना करे. जब वो ओवरकम कर लेगा बॉल रेस्ट में आ जाएगा. ठीक है. ओके, लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. इसमें हमने क्या किया, वी हैव प्लेस्ड ए कार्डबोर्ड ऑन एन एम्प्टी टम्बलर. ओके, हमने एक ग्लास लिया, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड प्लेस किया एंड वी हैव केप्ट ए कॉइन ऑन द टॉप ऑफ दैट कार्डबोर्ड. ओके, then what we do, we have to flick the cardboard with the finger. okay, हमें सडनली उसको फ्लिक करना है. इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखो हम सडनली जो ये देखो एक कॉइन है, एक कार्डबोर्ड है, एक ग्लास है, तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं और हम उसमें से जो मिडिल ऑब्जेक्ट है उसको हम फोर्स से उसको मूव कर रहे हैं. ओके, फ्लिक कर रहे हैं कार्डबोर्ड को. अब जो बाकी दो ऑब्जेक्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इनर्शिया वो तो उसी स्टेट में रहना चाहेंगे जिस स्टेट में है. ठीक है, कॉइन जो है रेस्ट स्टेट में है, कॉइन पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया. जो ग्लास है वो भी रेस्ट स्टेट में है, हमने सिर्फ कार्डबोर्ड पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको मूव किया है. दैट मीन्स बाकी जो चीजें रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहेंगी. जैसे ये जो बैरियर है वो हटा, the coin suddenly drops inside that glass, क्योंकि according to laws of inertia वो rest state पे रहेगी तो वो suddenly इस पे drop हो जाती है. That means ये हमें prove करता है कि on flicking the cardboard moves fast, whereas the coin continues in its state of rest and hence drops into the tumbler. Okay, another example is when is passenger standing in the moving bus leans forward when brakes are applied suddenly. जब एक पैसेंजर होता है जो बस में ट्रैवल करता है, जब सडनली जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है तो वो जो पैसेंजर है वो फॉरवर्ड लीन कर लेता है या फिर फॉरवर्ड को मूव कर लेता है. जबकि उसका जो नीचे का पोर्शन है, जो लेग्स हैं वो तो वैसे ही रहते हैं रेस्ट स्टेट में, लेकिन वो जो उसका ऊपर का पोर्शन है वो आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं. वो क्यों होता है, क्योंकि जब एक मूविंग बस हॉल्ट करती है या ब्रेक पे आती है तो वो जो बॉडी है वो उस मूविंग उस मोशन को रेजिस्ट नहीं कर पाती. ठीक है, जो अपर पार्ट है जो बॉडी की वो तो अभी भी मोशन में रहना चाहता है. ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो मोशन में रहना चाहता है. इसीलिए उस जर्क को या फिर उस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए फॉरवर्ड लीन कर जाती है. जबकि वो जो लोअर पार्ट है, लेग्स हैं, वो तो क्योंकि बस हॉल्ट पे आ जाता है तो वो जो लेग्स हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच हैं, वो डायरेक्टली टच्ड हैं उस बस से, तो वो बिल्कुल सडनली रेस्ट पे आ जाते हैं. तो इसीलिए हम फॉरवर्ड लीन कर जाते हैं. ठीक है, और इनर्शिया जो है वो 3 तरीके से क्लासिफाइड है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने पढ़ लिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. व्हेन ए ड्राइवर टेक्स अ टर्न द पैसेंजर फील्स द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, so this is due to inertia of direction. So these are important points that we have discussed today. So I hope you understood this